हेलो एंड वेलकम टू दिस इवनिंग बुलेटिन। दिस इज मनोज दारा और मैं हूं रुचि शर्मा। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। क्रिप्टो करेंसीज ने शुक्रवार को इस ऑप्टिमिज्म के बीच गेन्स एक्सटेंड किए कि यूएस इकोनॉमी में चल रही कमजोरी फेडरल रिजर्व को धीमी क्लिप पर रेट्स बढ़ाने के लिए मजबूर कर सकती है। जबकि दिन के दौरान बिटकॉइन ने 6 हफ्तों के बाद सबसे हाई लेवल पर जाते हुए $24,294 पर ट्रेड किया। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ने पिछले 24 घंटों में फ्यूचर्स ट्रेडिंग में $483 मिलियन से ज्यादा मूल्य के पोजीशंस को लिक्विडेट किया, जिसमें 63% से ज्यादा लिक्विडेशन शॉर्ट बेट्स के लिए अकाउंटिंग थे। इन सब के बीच बिटकॉइंस ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में 2.7% की बढ़त के साथ $23,700 पर ट्रेड किया, जबकि ETH ने उसी समय के दौरान 2.7% की बढ़त के साथ अराउंड $1,670 पर ट्रेड किया। वहीं सभी मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी बढ़त देखने को मिली। Alright, so venture capital firm Andretz Horowitz said it's leading a $50 million seed round for Gary Vaynerchuk's NFT projects VFriends, celebrity influenced, and Vayner Media CEO Gary Vaynerchuk, or Gary V, launched VFriends in May 2021. VFriends intends to use the seed capital to expand its intellectual property, which is IP, across physical and digital platforms of the 283 VFriends characters. The platform also plans to make new hires. हांगकांग क्रिप्टो लेंडर बेबल फाइनेंस ने पिछले महीने लिक्विडिटी प्रेशर्स के बीच विड्रॉल्स को सस्पेंड कर दिया था। कथित तौर पर कस्टमर फंड्स के साथ प्रोप्राइटरी ट्रेड्स में $280 मिलियन का नुकसान हुआ। डेक के अनुसार बेबल का एम करोड़ों डॉलर्स के डेट को इक्विटी में बदलना है, क्योंकि ये फंड्स जुटाने के लिए एक रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी प्राप्त करना चाहता है। Moving on, Francis S., the mayor of Miami, announced the city's intent to release 5,000 Ethereum NFTs later this year. Miami will work with Salesforce, MasterCard, and Time Magazine to carry out the project. So the MasterCard will provide Miami NFT holders with exclusive event access at restaurants and private culture tours in the city. Salesforce will manage the minting and initial sale of the NFTs, while Time will guide the strategy, develop the creative aspects, and launch the initiative. क्रिप्टो करेंसी लेंडर सेल्सियस ने कस्टमर्स को चेतावनी दी है कि डेटा ब्रीच के कारण उनके ईमेल लीक हो गए हैं। सेल्सियस ने यूजर्स को ये इन्फॉर्म करते हुए ईमेल किया कि उनके ईमेल डिलीवरी वेंडर customer.io के एक एम्प्लॉय ने क्लाइंट के एड्रेसेस की एक लिस्ट एक्सेस की और उन्हें एक अनऑथराइज्ड पार्टी को भेज दिया। सेल्सियस ने कहा कि उसने इस घटना को हाई रिस्क नहीं माना है और उसे इन्फॉर्म किया गया था कि किसी दूसरे सेल्सियस से रिलेटेड डेटा को आइडेंटिफाइड ईमेल एड्रेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया था। After failing to go live last month, the Cardano Vasselhart fork is delayed again as team behind the Cardano blockchain development target a smooth network upgrade. Input-Output Global, the organization responsible for Cardano's research and development, released a YouTube update on Thursday on the upcoming Vasselhart fork. स्काई मेविस के CEO ट्रंग न्यूएन ने एलिजली रॉनिन हैक की घोषणा से कुछ घंटों पहले रॉनिन ब्लॉकचेन से क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस में $3 मिलियन के नेटिव टोकन AXN को ट्रांसफर कर दिया था। ऐसे में स्काई मेविस के कर्मचारी कैली मोर ने CEO द्वारा किए गए ट्रांसफर की पुष्टि की है। न्यूगन ने इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल होने के आरोपों का खंडन करते हुए इसे निराधार और झूठा बताया है। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। Alright, so Ruchi, let's move on to our next segment, Weekly Wrap. Hello and a very warm welcome to Crypto Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from Cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I'm Manoj Zara, and Ruchi, let's get started with the top headlines for today. Yes, for sure. Cryptocurrencies are set to end the week with small gains as investors book profit amid mounting economic uncertainty and profit-taking. Bitcoin climbed to 6-week high amid optimism that the ongoing weakness in the US economy may force the Federal Reserve to raise rates at a slower clip. Federal Reserve Chairman Jerome Powell earlier this week said that the central bank will hike its rate by 75 basis points in September after unveiling a similar hike earlier this week. However, future hikes may be smaller and data-driven, Powell hinted.
The US economy contracted for 2 straight quarters, widely understood as an indicator that the economy was in recession, which however was refuted by US President Joe Biden and US Treasury Secretary Janet Yellen. तो यहाँ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ मनोज, जो हमने देखा। तो अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट हाइट की, आप ये सेक्टर को बहुत वाइडली आप फॉलो करते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? सो इनफैक्ट एक बहुत बड़ा एक सीक्वेंस था ये वीक में, मैं आपको अच्छी तरीके से हमारे व्यूअर्स के लिए हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहले वेडनेसडे को यहाँ पर एक अनाउंसमेंट आई थी 75 बेसिस पॉइंट्स हाइक की। उसके बाद में हमने देखा कि मार्केट ने एक अपसर्ज देखने मिला था। तो ये एक रीजन इसके लिए था बिकॉज दैट वाज द इवेंट वाज एक्चुअली प्राइस्ड इन 100 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेक्टेशन था, 75 बेसिस पॉइंट्स आई, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच मार्केट हैज वाज एक्चुअली ये इवेंट को पूरा एक प्राइस इन कर लिया था। जीडीपी के नंबर्स आए यूएस के, और वहां पे लेकर हमें तो पता ही है कि यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को भी हम हमेशा बताते रहते हैं कि देयर इज अ बिग कोरिलेशन बिटवीन द स्टॉक मार्केट और यूएस स्टॉक मार्केट एंड द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। बहुत अच्छी तरीके से फॉलो साथ में चलते हो जी। All right, let's move on. Former Finance Secretary of India, Subhash Garg, is in favor of government having a discussion with the crypto industry rather than cracking down heavily on the entire digital sector. Garg was in the view that killing crypto would harm prospects of the country and its potential use in several sectors. So, Subhash Chandra Garg, उन्होंने काफी अच्छी तरीके से एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इंडस्ट्री, क्रिप्टो इंडस्ट्री जो एक बहुत बड़े कंसर्न से जा रही है, उनको कंसल्टेशन करने का जरूरत है। मे बी सेंटर कैन टेक इट अप इफ थिंग्स टर्न आउट टू बी राइट, बट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देयर आर ब्रॉडर कंसर्न्स एज फार एज एक्सचेंजेस तो हमेशा बता ही रहे हैं कि यहाँ पर उनके वॉल्यूम्स कम हुए हैं, वॉल्यूम्स ड्रॉप हुए हैं बिकॉज टैक्सेशन को लेकर और टीडीएस जो इंक्रीज हुआ था, मे बी दे आर नॉट हैप्पी with the government and they want to renegotiate as far as the how to increase their customer base and get them back, you know. So that is something, and every exchange will try it, and they are actually suffering as of now. जैसे एक्सचेंज की आप बात ही कर रहे हैं, क्रॉस टावर एक्सचेंज ने एक रिपोर्ट में कहा है कि जिस तरह से ब्लॉकचेन और जो ये टेक्नोलॉजी, वेब3 टेक्नोलॉजी इतना बढ़ेगी, उससे जो ये डिजिटल एसेट की जो पूरी इंडस्ट्री है वो इन अ डेकेड यानी अगले 10 सालों में $262 बिलियन की हो सकती है, और उससे हाँ, और उससे जो है इंडिया को बहुत फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं वी शुड नॉट मिस आउट ऑन दैट। All right. Yeah. So moving on, the International Monetary Fund is of the view that the rise of cryptocurrencies does not pose a threat to global financial stability, noting that the current sell-off has dampened any fears. According to the IMF, the market correction in cryptocurrencies has been modest and has been little influence on the overall financial sector. तो यहाँ मनोज आप क्या कहना चाहेंगे? इनफैक्ट ये बहुत ही मतलब स्टेटमेंट, इट कम्स एट अ टाइम व्हेन क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज एक्चुअली अंडर broader stress. I had read this news, couple of days back, और उनका एक कहना ये है कि जो इंटायर इकोसिस्टम में जो टेरा लूना कोलैप्स हुआ था, फिर उसके बाद में ये सब हुआ था, उससे जो ब्रॉडर मार्केट से उसको इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। और इनफैक्ट वो एट्रीब्यूट कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया का जो वॉर जो हुआ है, उससे लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न ग्लोबल इकोनॉमी को हुआ है। इन्फ्लेशन, राइजिंग इन्फ्लेशन, उसके बाद में एक स्टेप 2 था, उन्होंने वो एट्रीब्यूट किया हुआ है। एंड एज ऑफ नाउ यहाँ पर जो कोलैप्स हुए थे और जो बैंकरप्सी हुई थी, उसका ये मार्केट में ब्रॉडर ग्लोबल मार्केट्स में उसका इम्पैक्ट नहीं है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, बट things might change if there are more bankruptcies or if there is any other concerns. You cannot expect what's happening in this cryptocurrency market because the Terra Luna collapse के बाद में बहुत कुछ change हुआ है, and day in day out यहाँ पर कुछ ना कुछ होते रहता है, and only time will tell that if they are looking at the right direction. वैसे जो IMF की जो रिपोर्ट है या फिर जो उनका कहना, उससे बिल्कुल ऑपोजिट यूरोपियन सिस्टमैटिक रिस्क बोर्ड का जो कहना था, वो कहता था कि कहीं ना कहीं ये कंसर्न है क्रिप्टोकरेंसी मार्केट का इफेक्ट जो है वो ट्रेडिशनल मार्केट पे पड़ेगा ही पड़ेगा। That's what there are different opinions and different market participants है काफी अच्छी तरीके से अपनी इकोनॉमी को संभालते भी हैं, and we have to respect their views. Of course. Moving on, Meta Platforms posted a second quarter loss of $2.81 billion in its Facebook Reality Labs division, which comprises its augmented and virtual reality operations. According to its earnings report, FRL generated revenue of $452 million in the second quarter, down from $695 million in the first quarter. So Facebook जो मेटा एक्चुअली जो फॉर्मली नोन एज फेसबुक है, उन्होंने काफी लॉसेस भी सफर किए हुए हैं।
और इनफैक्ट ये तो क्वार्टरली अर्निंग्स है एंड see basically their intention is to focus on this development which is known as metaverse Right. और उन्होंने लगभग जो उनके एडवर्टाइजमेंट्स जो स्पेंड्स हैं उन्होंने 10% बढ़ा दिए हैं टू 3.6 बिलियन डॉलर्स. इट्स अ ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर व्हिच कंपनी इज ओवरसीइंग और उनको एक बहुत बड़ा कंपटीशन भी है. यू आर टॉकिंग अबाउट ट्विटर. जो एक्चुअल कंपटीशन है उनका टिकटॉक है. सो व्हेन यू से दैट कि दिस इज समथिंग यू नो they are actually looking in the right direction as far as Meta is concerned because losses हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा because ऐसे decisions you know it take time से maybe 1 year और 2 years के बाद में उसका impact देखने मिलता है. Once this picks up then you will see the real impact. इनफैक्ट जो इनका रेवेन्यू हुआ है इस क्वार्टर में दैट इज $28.4 बिलियन जो और मेटा का कहना है कि अगले क्वार्टर में थर्ड क्वार्टर में और कम होगा रेवेन्यू. लेकिन फिर भी इन्हें ज़्यादा चिंता नहीं है क्योंकि मार्क ज़करबर्ग का कहना है कि वो फोकस कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ रील्स एंड मेटावर्स लाइक यू सेड. क्योंकि टिकटॉक का अगर कंपटीशन है तो वो रील्स से ही है. इंस्टाग्राम का रफली अराउंड $1 बिलियन का रेवेन्यू है. जी. सो दैट इज समथिंग which is not a concern as of now, but if we see the meta kind of a thing, Facebook is the different entity because you know since it's a tech stock, cryptocurrency market, technology क्षेत्र में technology sector को काफी ट्रैक करता है and it's only time will tell that कि उनका कैसा है कि metaverse में और उनका decision कितना सही है right. वो देखना पड़ेगा. Let's moving on. According to crypto analytic company PeckShield, Solana-based Nirvana Finance was attacked, causing its own DeFi protocol token ANA and the NIRV stablecoin to drop in value by 90%. In addition, hacker stole $3.5 million in the flash loan attack. तो यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये बात है कि ये हैकर ने क्या किया कि $10 million का USDC फास्ट लोन लिया और उसको ANA इशू किए उन्होंने और बाद में कन्वर्ट कर दिया. हाँ उसमें कन्वर्ट कर दिया और जब रेट्स बढ़े तो $13.5 million में उसको उसने ANA को जो है सोल्ड. So what he did is actually converted and वो pump prime, this is known as pump priming the artificially उसको jack up किया prices को and then he booked and he converted everything and he left. हाँ तो अपना लोन भी पे ऑफ कर दिया $10 million का और जो बाकी के बचे थे पैसे वो अननोन इथेरियम वॉलेट में डाल दिए, उसको कन्वर्ट कर दिया डाई में. तो अभी फिलहाल जो है इस प्लेटफॉर्म पे जो सारी ट्रांजैक्शंस है ट्रेडिंग है वो रोक दी गई है. सो अभी ये यू नो हैक्स एंड क्रिप्टो करेंसीज ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है. यू नो इट्स आई मीन बीन स्टॉक प्रोटोकॉल जैसे इतने बड़े बड़े हैक्स जो होते हैं आप इट हैपेंस ओनली इन 13-14 सेकंड्स. इट्स ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं है, प्रॉपर कोडिंग के हिसाब से होता है. एंड आप अगर हर एक हैक को अगर स्टडी करने जाएंगे तो इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड. मे बी अ टेकी कैन एक्सप्लेन दिस फॉर अस. नेक्स्ट टाइम वी विल ब्रिंग दिस फॉर आवर व्यूअर्स. Moving on, lawyers representing bankrupt crypto lender Voyager Digital have said that no customer will be fully compensated for the value of crypto under the bailout offer made by Sam Bankman-Fried-led FTX, called an offer a low ball bid. So whenever such things happen, such bankruptcy होती है और यहाँ पर सैम बैंकमैन-फ्राइड जैसे कोई भी इन्वेस्टर आके बेल आउट करते हैं तो वो यूजुअली इट हैपेंस एट अ lower price पे होता है. That's the reason why they are calling it as a low ball offer. Right. So it becomes difficult for any entity who is suffering from a bankruptcy to pay. Say for example, if you have invested or maybe आपका exposure वो exchange के पास में 100 rupees का है तो आपको 100 rupees नहीं मिलेगा because they are actually selling their company for maybe 40 rupees or maybe 30 rupees or a throwaway price. So this is the statement which is coming in and maybe this can be a strategy to jack up the price, offer price or maybe इन्वेस्टर का राउट से वो कुछ उन लोग कहना चाहते हैं कि आप आपका प्राइसेस बढ़ाइए. हो सकता है इसी वजह एक्चुअली जो वॉयजर डिजिटल के लॉयर्स हैं उन्हें इस तरह का स्टेटमेंट इसलिए देना पड़ा क्योंकि सैम बैnkman-फ्राइड के देयर वाज अ सीरीज ऑफ ट्वीट जहां उन्होंने कहा था कि वॉयजर डिजिटल के जो भी कस्टमर्स होंगे उनको 100% पे बैक होगा. लेकिन अब लॉयर्स कह रहे हैं कि सैम बैnkman-फ्राइड ने ऐसा इसलिए किया फॉर ओनली टू जनरेट पब्लिसिटी, सो व्हिच कुड बी ट्रू इन अ मैनर. Moving on, the UK Law Commission, an independent body tasked with reviewing and updating the law, wants to extend the country's property rules to cover crypto and non-fungible tokens, according to a consultation paper published Thursday. In another regulatory news, the legislation that could establish US regulations for stablecoins has formally been delayed until after the August congressional break. तो यहाँ जो तो आप तो सबसे पहले ये सेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक करते हैं. इनफैक्ट प्रॉपर्टी एंड NFT का कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश हो रहा है? तो यहाँ भी फिलहाल जो है ना यूके बहुत ज़्यादा
क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री बनना चाहता है और वो ग्लोबल क्रिप्टो हब बनना चाहता है और इसके बहुत सारे उन्होंने जो है इंडिकेशंस दिए हैं। अभी उन्होंने जो भी NFTs हैं या डिजिटल एसेट्स है, फर्स्ट पर उनको पर्सनल प्रॉपर्टीज़ या प्रॉपर्टीज़ का जो है दर्जा दे दिया है। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, अब अगर उनको कोई भी लॉसेस होता है फ्रॉम हैक और स्कैम, तो वो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं उस पर। तो इस तरह से एक बहुत ही पॉजिटिव मूव जो है हम देख रहे हैं यूके की तरफ से। और यूके, जैसे कि हमने कहा कि स्टेबल कॉइन्स भी वो अपना लाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उसमें थोड़ा सा हम डिले देख रहे हैं। अगस्त के बाद जो है उसके ऊपर थोड़ा काम, आई थिंक फाइनल things will start moving. Right. All right, moving on, Coinbase, a leading cryptocurrency exchange based in the United States, is reportedly facing increased scrutiny from the SEC as the number of tokens listed on its platform grows. The SEC will look into whether the exchange allowed American customers to trade cryptocurrency assets that qualified as unregistered securities. Meanwhile, Cathie Wood of ARK Investment sold roughly around 1.4 million Coinbase shares amounting to $75 million. So ये एक बहुत ही बड़ा एक I had met her in Miami and she is actually a very big cryptocurrency के बहुत ही ज़्यादा supporter है और for भी है और in fact if you will watch her videos, she is actually a long-term investor and if she is selling her shares, that means this is actually a cause of concern. और ये SEC अगर Coinbase के पीछे पड़ा है, that means वो development में there is something which is negative as far as the exchange is concerned, और that is the reason why the investor got worried and sold her shares. Actually SEC ने 9 ऐसे कॉइन्स को नेम भी किया, आइडेंटिफाई भी किया, जैसे कि AMP है, DDX है, DFX है, RGT, इस तरह के 9 डिजिटल एसेट्स को उन्होंने कहा भी है कि ये एक्चुअली एक्सचेंज ने डिनाई भी किया है वो कि ऐसा कोई अभी आपने चोरी की है तो वो आप तो बोलेंगे नहीं कि हमने की है, तो आप प्रूव करो या तो फिर हमने की नहीं है। जो लीगल चीफ हैं इनके ऑफिसर है, उन्होंने इनफैक्ट पिटीशन डाल दिया SEC के खिलाफ फिलहाल। Let's see. Yes, moving on, Coinbase released the first part of its Bored Ape Yacht Club featured movie on July 26th. The movie is called the Digen Trilogy. Coinbase shared the first part of the movie titled Run the Chain on Twitter. और उनका ये कहना है कि जो वो है वो कई कस्टमर्स की जो है NFTs को वो शोकेस करेंगे सेकंड और थर्ड मूवी में, लेकिन उसके लिए उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा इनकी जो NFT मार्केट प्लेस है उसके ऊपर। तो एक अच्छा आई थिंक इनिशिएटिव है। अच्छा ये बहुत अच्छा एडॉप्शन बढ़ रहा है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज, आई मीन UK is doing something and this is actually a move which will help NFT adoption. Actually. All right, that's all there is in today's weekly wrap. This is Manoj Dara. And this is Ruchi Sharma signing off. Do like, share and subscribe to Crypto TV. Have a great weekend.